Justice P.S. Narasimha is a serving Supreme Court judge. He was charging minimum 3.5 lakhs per appearance for one matter. अगर एक आदमी 21 से 22 लाख रुपए एक दिन में कमा रहा है and he chooses to become a judge of Supreme Court of India. क्या इसमें कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई होती है? आपने देखे हैं जाके 15 करोड़ थे. 25 years का एक बच्चा, उसने क्या देखा जिंदगी में? 23 से 25 तक जुडिशरी की प्रिपरेशन करके आप जज बन गए हैं. तो आपने कोर्ट इधर से देखा ही नहीं कभी. चेक बाउंसिंग का केस कर रहा था और आई वॉज अपेयरिंग फॉर द कंप्लेनेंट. शी स्ट्रेट अवे गॉट कन्विंस्ड विद मी, आई डोंट नो व्हाई, एंड शी इशूड नॉन अवेलेबल वारंट्स. रियली? सच में. आपकी माँ, आपका बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, बहन, भाई और सोसाइटी साथ छोड़ देंगी, लेकिन एक वकील नहीं छोड़ेगा. वकील हाजिरों पे हमारे साथ हैं निपुण कत्याल. वकील हाजिरों का सीजन 1 चल रहा है. थोड़ी देर में कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जुड़ते हैं निपुण कत्याल जी के साथ. ही इज़ अ रेगुलर एट सुप्रीम कोर्ट, एट हाई कोर्ट, और अगर इनको क्लाइंट बोलते हैं कि भाई लोअर कोर्ट में भी आ जाओ तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं. बट राइट नाउ द कॉन्वर्सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव विद हिम, आई थिंक आपको मज़ा भी आएगा और आप सीखेंगे भी बहुत कुछ, बिकॉज निपुण कत्याल इज़ नोन टू स्पीक द ट्रूथ and make sense for every client he sits with. Nipun, welcome to Vakil Haziro. Thank you so much, Dhruv ji. How are you? I'm good. And thank you so much for calling me. और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली आपने मेरे बारे में. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर वकील सच ही बोलता है. और ऐसे बोला जाता था ना कि जो झूठ बोल रहा है वो अच्छा वकील बनेगा. हाँ. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. मूवीज में जैसे दिखाया जाता है वैसा भी नहीं है. तो थैंक यू सो मच. आपने इतना बोला. Supreme Court, High Court, District Courts, everywhere we can go. As advocates, we can practice all over the country. जब भी हम एक वकील को देखते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, हमारे मन में आती हैं फिल्में जो हमने देखी हैं और सीरियल. करेक्ट. जिसमें वकील झूठे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, करप्ट हैं, कभी भी पार्टी बदल दी. बट आई मीन, क्या इसमें कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई होती है? क्या आपने देखा है? देखिए, मैंने अपने आप से एक्सपीरियंस तो नहीं किया है कि अगर वकील किसी और की पार्टी में चला गया या ऐसा कुछ हो गया. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, ये दिस इज अ यिन यांग फिलॉसफी. ठीक है कि अगर एक सोसाइटी है उसमें कुछ खराब लोग हैं तो अच्छे भी होंगे, और एक अच्छी सोसाइटी है तो उसमें कुछ खराब लोग भी होंगे. दिस इज द फिलॉसफी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. इवन इन द लीगल फ्रेटर्निटी, even in, I think, medical fraternity or other professional services, everywhere. But what you have to do is you have to set an example for the other people who are coming, or younger people who are coming, that okay, this is wrong. Then only I think the society can get changed, and in a positive way. तो होती होगी corruption और होता होगा unethical behavior by few advocates, but the only good part about this is that as soon as you come to know that there is some corruption in my own fraternity, you boycott that person who has actually committed corruption. आप अभी एक है, presently he is serving as the judge of Allahabad High Court now, because he is repatriated from Delhi High Court to Allahabad High Court, Honorable Mr. Justice Yashwant Verma. And I have to say Honorable Mr. Justice, because at this point of time while we are talking to each other, he is serving as a judge of the High Court and holding a constitutional position. Right. So, but on the other hand, if you will see prima facie, if a person is having certain objectionable things like money at his residence, he is liable to answer कि ये हुआ कैसे और क्या हुआ, what is your reply and everything, right? So at this point of time, the Honorable Supreme Court has very swiftly constituted a committee of serving High Court judges to investigate into this matter and submit a report. And during the pendency of the investigation, what is happening? He is not allowed, first, he is not allowed to do any judicial work. Okay. The second, that he is repatriated to his parent High Court, जहां से वो elevate हुए थे,
वो वहां वापस चले गए। ठीक है। These are the two things. It is more of a punishment for him. Whatever. And now again, Audi ultram partem और principles of natural justice that जब तक इंक्वायरी में कुछ नहीं आएगा और दूसरी साइड को नहीं सुना जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आप किसी को एक्यूज्ड करार नहीं दे सकते हैं। बट ऐसा होगा कि मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो जज साहब थे उनके घर पे अगर मान लीजिए 12 करोड़ रुपए मिले, 15 करोड़ रुपए मिले जी, क्या ये सेंस बनाता है कि उनके घर में 15 करोड़ रुपए हो सकते हैं? क्योंकि इतनी सैलरी बिल्कुल भी नहीं बनाता है, बिल्कुल भी नहीं बनाता है ये सेंस। बट आपने देखे हैं जाके 15 करोड़ थे। You're absolutely right. My question is that 15 करोड़ रुपए अगर मिले हैं, मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि मिले हैं, बट मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन किया हो, कैश ट्रांजैक्शन किया हो सकता है 15 करोड़ रुपए जो उनके पास सैलरी उनकी अभी तक की जमा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ऐसे ले पर्सन लैंग्वेज में मुझसे बोल रहे हैं तो मैं आपको एक लीगल लैंग्वेज में एक आंसर देता हूँ इस चीज का, कि अगर किसी के पास भी इंक्लूडिंग द टॉप बिजनेस पीपल इन द कंट्री are having 15 crores of cash in their possession, that is also questionable. Okay. Right? Anyone. अगर आप अपनी गाड़ी भी लेने जाएंगे तो आप क्या 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश दे सकते हैं? नहीं. These are guidelines. Right. These are guidelines that in the cash transaction should not be above 2 lakhs. अगर आपके पास टैन नंबर है तो आप 30,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं विदाउट डिडक्टिंग अ टीडीएस, और यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट और यू कैन नॉट विड्रॉ विदाउट शोइंग योर पैन नंबर और सोर्स ऑफ इनकम। यू कैन डिपॉजिट इन द बैंक एज वेल मोर देन 50,000. राइट. दीज आर गाइडलाइंस, राइट? सो ये बहुत अटपटा लगता है ये सुनना कि होगा जी, किसी और का होगा या किसी ने दिया होगा इनको, कोई प्रॉपर्टी बेच दी होगी, कोई 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अगर एक हाईकोर्ट जज जिनको लॉ पता है, इज नॉट सम ले पर्सन हु इज जस्ट वॉकिंग हेयर एंड देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई एक चीज है। दूसरा चीज, उस 15 करोड़ रुपए का सिर्फ एलिगेशंस लग रहे हैं। व्हाट इज देयर, नॉट देयर, उसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। So one person, advocate, I personally don't like that advocate because he's only doing PILs. And we don't want this, it has to be public interest litigation rather than a private interest litigation. So he filed a PIL or a writ petition before the Honorable Supreme Court. And Supreme Court vehemently dismissed the writ petition. What was his prayer? That register an FIR against Justice Yashwant Parma. Correct. But the Honorable Chief Justice of the Honorable Supreme Court of India said that the investigation or an inquiry is pending. I have appointed and constituted a special committee or a team to inquire about this matter. So after the report of the committee comes, then only I think we'll be in a position to answer. Then only we'll be in a position to actually take action against him or in his favor, whatever it is. But you have to wait for the investigation to get complete. Don't jump on the conclusions like this. True. Right? Though, but prima facie, on the face of it, if all the allegations are true, he is in danger. ठीक है. एक जज जो कि हम देखते हैं कोर्ट्स में, मतलब हमें नहीं पता, बट उनकी सैलरी इतनी होती है कि ये सब उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? लाइक पेंट अ पिक्चर फॉर अस कि एक अगर जज जो कि इतने बड़े बड़े फैसले सुना रहे हैं, लोगों की जिंदगी के बारे में जज कर रहे हैं, राइट? हाउ डज द गवर्नमेंट ट्रीटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज यू सेड? सी, अब आपको मैं एक दो चीजें बताता हूँ। एक होते हैं जो शुरू से जज होते हैं, बाय प्रमोशंस भी गए होते हैं, ठीक है, मे नॉट बी अर्निंग दैट मच, बट लोगों की जिंदगियां उनके हाथ में है। करेक्ट. ठीक है। एक है जो बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड होते हैं, सरकार को लगता है कि ये जज बनने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को लगता है कि ये जज बनने चाहिए, और फिर उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाता है बाय टेकिंग हिज कंसेंट दैट वेदर यू वांट टू बिकम अ जज और नॉट. व्हाई becoming a judge is a conscious decision because of two reasons.
One is that you are out of practice. You are not dealing with anyone socially. You are refraining yourself from going to the parties. And the third one is, of course, you're not earning that much because you're on a salary. अब सैलरी कितनी होती है? वो जितनी सरकारी लोगों की सैलरी होती है, सबसे ज्यादा होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, मे बी 3.5 मैक्सिमम 4. I don't know, because HRA and everything they get and other perks and bonuses. But अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. अभी की बात है. जस्टिस PS नरसिम्हा इज अ सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज, एंड उससे पहले हैं जस्टिस नरिमन, जस्टिस L नागेश्वर राव. ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. Do you know how much Justice Narasimha, who is a present Supreme Court judge, was charging? He was charging, I think, minimum 3.5 lakhs or to 5 lakhs per appearance for one matter, and he used to do maybe 7 matters a day. So, which means that he was earning much, much, much more than his monthly salary, I think, daily. अगर एक आदमी 21 से 22 लाख रुपए एक दिन में कमा रहा है, and he chooses to become a judge of Supreme Court of India, तो कितना अंतर आ जाएगा आपकी अर्निंग कैपेसिटी में. करेक्ट. बट ही चोज टू सर्व द सोसाइटी by pronouncing good judgments, by taking care of the pendency of the matters, by taking this initiative to become a judge and surrender all his cases. And mind you, that he will not be able to practice now before any court in the country, because he is a judge in Supreme Court. Now about the perks. He's living, or any judge of Supreme Court lives in Lutyens and having a type 6 or type 7 bungalow, having I think couple of PS secretaries who are of registrar level, gazetted officers, and a cook, a driver, a gardener, and he's given a car, and all the stationery, whatever you like, just point a finger on that product, you will get it. So these much of facilities every judge is having. जो जरूरी भी है. बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है. आपका काम नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल भी. तो these are the points that okay, these are the perks. But एक आदमी जब 21 लाख रुपए कमा रहा था ना, वो 1 साल का अपना ये सब वैसे ही ले लेता एक दिन में. करेक्ट. But he has actually मतलब decided कि भैया अब मुझे ना जज बन जाना चाहिए, because I want to actually serve rather than being just a commercial advocate. And this is the case with all the other senior advocates who have become. मेरे समय में एक सीनियर एडवोकेट थे, फिर बाद में जाके वो जज बने, फिर बाद में जाके वो चीफ जस्टिस बने, जस्टिस यूयू ललित. He was the ace criminal advocate or sought after criminal advocate practicing in the Supreme Court of India. उनको अगर चूज, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, फिर किसी और से पूछा जाता था कि उनका क्रिमिनल केस कौन करेगा, क्लाइंट. तो वो भी जज बन गए. तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास काम नहीं है या वो बन रहा है जज क्योंकि उसको पर्क्स मिलने चाहिए. I think deciding the law is much more noble than just representing the clients, right? आप इस समय मेरे सामने एक कुर्सी पे बैठे हैं. काफी सारे केसेस आपने लड़े होंगे, काफी सारे क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट किया होगा, बड़े ब्रांड्स को किया है आपने रिप्रेजेंट, एंड लॉट ऑफ हार्डन क्रिमिनल्स एज वेल, इफ आई मीन नॉट कन्विक्टेड बट यस क्रिमिनल्स. क्या जर्नी रही? वेयर डिड यू स्टार्ट? कब जेनेसिस हुआ आपके दिमाग में कि मुझे वकील बनना है? And you're the first generation lawyer in your family. And where did you start? पहली बार ख्याल कब आया कि मुझे वकील बनना है? पहली बार मुझे ख्याल तब आया जब मैं अपनी BA LLB की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा था. तो मुझे बनना था डॉक्टर. अच्छा. फिर उसके बाद चेंज हुआ कि भैया साइंस तो नहीं कर रहा हूँ मैं कैसे भी करके. अच्छा. बट ऑब्वियसली आई डिड माय 11th and 12th in science. And after that I thought to go for a good corporate job.
सूट्स पहनेंगे हम, कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट और ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। हमारे लिए था कि कॉर्पोरेट जॉब माने BBA एंड MBA फ्रॉम अब्रॉड एंड देन विल गो अहेड. सो वी यूज्ड टू गेट आवर कोचिंग्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स. तो मैं भी एक इंस्टीट्यूट में था. वहां पर एक कॉमन क्लास हुआ करती थी जनरल नॉलेज की और एप्टीट्यूड की. तो मैंने एक और अटेंड कर ली उनसे, लीगल टॉट्स की, लॉ ऑफ टॉट्स. तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज लॉ इज ओनली लॉजिक, सो यू कैन एक्चुअली रिलेट टू वॉट एवर वी आर एक्चुअली स्टडिंग, है ना. तो मुझे ऐसा लगा कि यार यही तो मैं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं. तो मेरी जनरेशन पहले की कोई वकील नहीं है, कुछ नहीं है, पता भी नहीं है, ना सोचा था कभी. लेकिन अब मेरे को समझ आ रहा कि भैया ये है एक फील्ड जिसके अंदर मैं कुछ कर पाऊंगा. तो हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया, दिल्ली में हमारा एडमिशन हो गया, 5 साल रगड़े, और अपने लॉ करियर के या लॉ स्कूल के फर्स्ट डे या फर्स्ट इंटर्नशिप में मुझे पता चल गया कि मेरे कोई कनेक्शंस नहीं है, मेरा कोई जानकार नहीं है जो वकील है. तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के साथ फॉलो अप करना पड़ेगा. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज मुझे इंटर्नशिप ढूंढने में इतना समय लगा जहां पे वो फ्री इंटर्नशिप होती है, वहां पे कोई पैसा नहीं मिलता है आपको कैसे भी करके. लेकिन फिर भी हमने गए, रोज के रोज 100 150 मेल्स किए लोगों को और बोला कि भैया मुझे इंटर्नशिप दे दो, मैं सीखना चाहता हूं. कई लोग बोले आप किसको जानते हैं, कई लोग बोले कि आपका क्या कनेक्शन है, कई लोग बोले कि इससे फोन करवा दो. अब कैसे भी करके हम धीरे धीरे अपने कनेक्शंस बिल्ड करते रहे. तो मैंने अपने लॉ करियर विच इज 5 years, 5 साल में 17 इंटर्नशिप्स करी है, ठीक है. फिर उसके बाद मैं किसी के चेंबर में एज ए जूनियर लगा, वो सीनियर एडवोकेट हैं. अब उसके बाद मैं एक और सीनियर एडवोकेट के पास लगा, मिस्टर राम जेठमलानी. तो राम जेठमलानी के पास काम करने के बाद जब मैं उनके पास पहले इंटर्नशिप किया, तो तब मुझे अपने 4th year में जाके ये रियलाइज हुआ कि आई वांट टू डू ओनली एंड ओनली लिटिगेशन. क्योंकि चौथे साल से पहले, मतलब 1st year, 2nd year, 3rd year एंड 4th year स्टार्ट हो रहा था, तब तक मुझे यही लगता था कि आई विल बिकम अ कॉर्पोरेट एडवोकेट. आई विल बी डूइंग माय BLLB ऑनर्स and after that I'll go abroad, do my MBA, and I'll be a good legal head of a company or a corporate where I'll be vetting the agreements and everything, right? फिर उसके बाद जब मैं वहां देखा कि such a noble profession actually the law is, आप जरूरतमंद की ही मदद कर रहे हैं. और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्रिमिनल है, जैसे आपने बोल दिया क्रिमिनल है, हमें बोलना नहीं चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल है. दे आर अंडर दे आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल एलिजिड एक्यूज्ड पर्संस, राइट? बिकॉज हु आर फेसिंग द ट्रायल बट आर नॉट क्रिमिनल्स एट ऑल. बट जैसे आपने बोला वैसे सोसाइटी बोलती है इनके बारे में, है ना. कोई भी आदमी किसी भी चीज के लिए जेल चला जाए, चाहे वो फेक केस हो, अच्छा केस हो, सच्चा केस हो, वो अगर जेल जा रहा है तो वो क्रिमिनल बन गया. दैट इज हाउ यू ट्रस्ट द पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस कंट्री अगेंस्ट द पर्सन हु मे नॉट बी गिल्टी, है ना. तो बट आपकी मां, आपका बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, बहन, भाई और सोसाइटी साथ छोड़ देंगी, लेकिन एक वकील नहीं छोड़ेगा. आप समझ के देखिए कि अगर कोई 376 का मुकदमा हो जाता है किसी के ऊपर, रेप का या किसी के ऊपर मर्डर का, ये तो चलो बहुत बड़े ऑफेंसेस हो गए, किसी के ऊपर फ्रॉड या फॉर्जरी का भी हो जाता है, तो एकदम से अभी आप देखिए एक घटना घटी है यहाँ पे, जिसके अंदर कुछ सीमेंट में डाल दिया, बाल्टी में लगा के, और ये सब चीजें हुई, है ना. तो इफ यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग इन द सोसाइटी, that the girl's parents also disowned her. तो इसके अंदर आप देखिए क्या उसको भी साथ छोड़ दिया किसी ने. वकील नहीं छोड़ता है किसी का साथ. एंड दिस इज हाउ यू आर, कि आपको वेदर दिस पर्सन इज अ क्रिमिनल, नॉट अ क्रिमिनल, गिल्टी, नॉट गिल्टी, द एडवोकेट इज नो वन टू जज हिम.
and advocate has to fight the case for him or her. Correct. No gender discrimination, no race, caste, color, creed, whatever. That's how actually you become a very good advocate, where you don't discriminate at all. तो अब जेठमलानी तक पहुंच गए हम. तो जेठमलानी साहब के पास गए और वहां पे देखा कि वो तो 90% अपने मैटर्स प्रो बोनो करते हैं, फीस नहीं ले रहे थे. He was helping out people whose constitutionality or constitutional rights were infringed. He is the one actually who filed a PIL for black money. Now also it is pending before the Honorable Supreme Court of India. He is the one who's actually, for one rank, one pension scheme has to be implemented. He is the one actually stood up. For whom? For the retired army personnels. Correct. Or retired people who belong to forces. Not only army but naval forces or air force people. So he was the one. How? So that's why I got very influenced, extremely influenced and mesmerized by seeing that एक इंसान जिसकी उम्र 90 से ऊपर है और उसके लिए इतने बड़े बड़े लोग वेट कर रहे हैं कि मिस्टर जेठमलानी जब आएंगे तो हम मिलने जाएंगे. So that's how my litigation career started, with Mr. Jethmalani, and after that I have worked with many other people as well, like Mr. Aman Lekhi. At that, when I was working with him, he was serving as an additional Solicitor General of the country before the Supreme Court of India. And after that, Dr. Abhishek Manu Singhvi. So I have done my part of becoming a junior, from junior to actually a person who is litigating by himself. So I am on my own now. लेकिन बहुत परिश्रम, hard work, no shortcut. You have to do it, which means you have to do it. You have to be available 24/7. You have to take calls. You have to represent in court. Judges डांट रहे हैं, वो आप ही को डांटेंगे, client को नहीं डांटेंगे, because you have actually stepped into the shoes of the client. So if the judge says that I think that you are fraud, not me, but the client. But who is facing the thrashings? The advocates. Nowadays, there are many things which are happening in the Supreme Court of India as well, where the advocates are facing contempts because of some wrong instructions by the clients. इसका पूरा बोर्ड बनाया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट होती है, ये सब चीजें भी होती हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर फॉर व्हाट? इट्स फॉर द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि ये आई थिंक ये वो स्टेट नहीं है, सऊदी अरेबिया हो या कहीं और हो जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वेयर द किंग इज रूलिंग, मे बी नॉर्थ कोरिया, where you just see whether Dhruv has committed some crime or not. I think Dhruv has committed crime, hang him. This is not that country. It's a democratic nation. And in the democratic nation, what happens? Principles of natural justice are followed. And what are principles of natural justice? Audi alterum partem. This is a Latin word which says that both the sides to be heard. तो आप अपने नजरिए से किसी को क्रिमिनल नहीं बना सकते हैं, जो आजकल बहुत आ भी रही हैं कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. इन द सेम वे, just because few people in the society are saying that person is a criminal or he has done something wrong, that doesn't mean that he is a criminal. Let him prove himself. So यही चल रहा है. और अभी आपसे बहस करने लगे, आपने तो अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे. नहीं, it's very interesting that you've told me. Yes. What has been your experience in dealing with judges who have never argumented in courts, जो कि कभी एडवोकेट नहीं रहे? मैं नहीं चाहता हूँ ये कभी भी हो ऐसा. लेकिन सीधा आके जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ये चीज कि you have to have certain years of experience in advocacy and you have to get yourself enrolled because of this reason कि आप किताबों में से जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इंप्लीमेंट होता है, वो आपको एक्सपीरियंस करना ज्यादा जरूरी है. Absolutely.
तो अगर ये छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आप मेरे को धर्म संकट में डाल रहे हैं, बट many young judges comes as metropolitan magistrate or judicial magistrates, very young, maybe 23, 22, 23, 24, that's all. 24 साल के, because in your last year of college you can start giving your papers, and then if you are very good in studies, you can get it cleared. और 25 साल की लगभग उम्र तक आप एक जज बन जाओ. एब्सोल्युटली. अब 25 इयर्स का एक बच्चा, उसने क्या देखा जिंदगी में, 17 साल तक उसने क्या किया, स्कूल में गया, फिर 17 से लेके 23 साल की उम्र तक वकालत करी, कॉलेज में गया, 23 से 25 तक जुडिशरी की प्रिपरेशन करके आप जज बन गए हैं. तो आपने कोर्ट इधर से देखा ही नहीं कभी. करेक्ट. So how would you know what the clients actually face? Correct. How would you connect to it? कि कितना पेंडेंसी है आपको तो पता ही नहीं है ना, आप तो कोर्ट आए नहीं कभी, प्रैक्टिस किया ही नहीं कभी. So the ground level reality is completely different. That is what people say, no? The grass is greener on the other side, right? So that's how we also think. Maybe the judges also must be thinking that मैं इतना काम कर रहा हूं, पैसा वो लेके जाते हैं. Maybe and maybe not. Like it's right all now, intention. Right now I'm not being ageist, मैं ageist नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अगर एक इमेजिन करते हैं कि 25 साल का इंडिविजुअल मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पे बैठे हैं और इफ दे आर डिसाइडिंग कि फलाना आदमी को बेल मिलनी चाहिए कि नहीं, इफ आई एम राइट, मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है बेल देने की और नहीं देने की, राइट? जी बिल्कुल. तो अगर 25 साल का एक इंसान डिसाइड कर रहा है, so do you think it's not fair, right? It's not fair. Correct. It's not fair. That is why the apex court of the country has said that you have to have certain years of experience as an advocate before giving your exams as a magistrate or as a judge or as a judicial officer. तो ये implement हो गया? बिल्कुल. अभी तो recently ये एक judgment पास हुआ है इसको लेकर. Nice. तो why? ये इसी के पीछे यही एक रीजन है. मैं एक 138 का केस कर रहा था, मैंने बोला कि अरे माय लॉर्ड, मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया. 138 इज चेक बाउंसिंग का केस कर रहा था, और आई वाज अपेयरिंग फॉर द कंप्लेनेंट, एंड ये बहुत पहले की बात है, लेकिन आई वाज अपेयरिंग बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एंड आई सेड दैट माय लेडी, नथिंग इज देयर, they are not representing properly and they have taken my money and each and everything. She straight away got convinced with me, I don't know why and how, and she issued non-bailable warrants. Really? सच में? This is a true story. हाँ, true story. Yes. This is insane. Yeah. So she issued non-bailable warrants in check bounce. In a check bounce case. और वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पावर है. तो आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर गए. लेकिन एक बात है कि वो ऑब्वियसली मेरे फेवर में था, तो आई वाज नॉट अग्रीव. बट द ओनली कंसर्न हियर इज दैट यू हैव टू थिंक. You have to think of the case as well. You can't just act upon it just because one person is actually convinced you. Why? Because of your age. कौन से कोर्ट की बात है ये है एक लोअर कोर्ट की बात. अच्छा, ठीक है. We won't disclose the name कि exactly कौन सा केस था, कौन सा कोर्ट था. But these incidents have you must have seen in Apex Court ने आपने बोला कि they've taken a notice of this what is happening, and they've observed it and they've already passed. Absolutely. I mean they've already taken a step against this. But Supreme Court हमने देखा है जैसे that it has interfered in this matter, हैदराबाद वाला, कि उन्होंने जंगल जो कट रहे थे और जो आग लगाई जा रही थी वो रोक दिया. सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसा हुआ है in the past, they've appeared as the hero. मतलब हमें लगता है कि यार फिर वही चीज हो रही है जो हम पढ़ते आए हैं, फिल्मों में देखते आए हैं, इंसाफ नहीं हो रहा वगैरह वगैरह. बट सुप्रीम कोर्ट एंटर एज अ हीरो. ये हीरो पर्सनालिटी सुप्रीम कोर्ट की हमने हाल फिलहाल में कई बार देख ली है. मेरे ख्याल से मीडिया भी एक्टिव है. आपको कुछ इंसिडेंसेस याद आते हैं जो कि आप पॉइंट आउट कर सकते हैं that these are 3 incidents or 4 incidents or 2 incidents where I think Supreme Court really did what they should have done? Yes. Many I think. एक तो अगर आप देखें जैसे कि एक एलिफेंट कॉरिडोर का मैटर था, एनजीटी को लेकर, कि एलिफेंट और एनिमल राइट्स को लेकर था,
ये सारे मैटर्स हैं. सुप्रीम कोर्ट is actually keen in interfering in these matters where the forest actually is cutting down and we are actually hampering the environment as people, or the elephants are not given much space for their habitat. Supreme Court interferes. And after that, why? इससे पहले मैं आपसे ये आंसर्स करूं. Supreme Court of India is people's court. Anyone and everyone can approach Supreme Court without getting any permission from a lower court or an appellate court. ये आपको बस मैं क्लैरिफाई करता हूं, फिर उसके बाद अब आ रहा हूं आंसर. ये सिर्फ हमारी कंट्री में या फिर बाकी सब कंट्री? बाकी सब कंट्रीज में नहीं है. You have to take an appeal. You have to file an application. Whether please allow me, because you have dismissed my case, please allow me. I want to take it on the higher side. यूएस में नहीं है? नहीं है. यूके में नहीं है? नहीं है. फ्रांस? Only in India. Only in India. Yes, it's a people's court. No jurisdiction, no pecuniary jurisdiction. Now, what is pecuniary jurisdiction? आपका 1 रुपए का मैटर है या 1000 रुपए का मैटर है या 1 लाख करोड़ का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट विल एंटरटेन. जैसे 1 रुपए वाला किया वैसे 1 लाख करोड़ वाला. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कोर्ट्स. अब दूसरा केस, एक जो बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया, हस्बैंड वाइफ का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है. ठीक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर आपको पता है कि ईगो क्लैशेस होते हैं, लड़ाइयां हो रही होती हैं आपस में फॉर मेनी रीजंस. मे बी वाइफ वांट्स अ डिवोर्स और हस्बैंड वांट्स अ डिवोर्स, और वो कुछ कुछ लिखा है वाइफ के बारे में, कुछ कुछ लिखा है हस्बैंड के बारे में वाइफ ने. उनका एग्जामिनेशंस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं. तो ये जो लड़ाई है जो आपस में हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स, वो हीट अप होती है. सो एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर एंड डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसेस अगेंस्ट ईच अदर बिफोर ऑल द कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट के पास एक छोटा सा रिलीफ लेकर आए, बट सुप्रीम कोर्ट इज प्रो सेटलमेंट court which will not actually instigate you to file another case. They want to end the litigation, right? So Supreme Court wants to end the litigation. उन्होंने अपनी powers use करी under Article 142 of the Constitution of India, wherein the Supreme Court granted divorce there only. So Supreme Court stepped into the shoes of a family court judge, but utilized, I don't want to say used, so the Honorable Supreme Court utilized its powers enshrined under Article 142 of the Constitution. Why? कि कितनी देर तक लड़ते रहेंगे, ये तो अभी लोअर कोर्ट ही पहुंचे हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट. And the Honorable Supreme Court is conscious of the fact that we have the largest population in the world. We have, I think, largest volume of cases which are pending. अगर यहां पे 4 केस खत्म हो रहे हैं मेरे एक ऑर्डर से, that is a good thing, right? Correct. That is how you should. तो वो किया, एंड अंडर आर्टिकल 142 उनको डिवोर्स मिल गया और वो सारे केसेस खत्म हो गए जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर किए हुए थे, सब खत्म कर दिया. बल्कि आज ही मैं सुप्रीम कोर्ट में था. There was some 420 matter which was going on. I was actually waiting for my own matter. So उससे पहले मैंने देखा तो सिर्फ एक बेल लेने आया था एक इंसान, क्योंकि उसकी लोअर कोर्ट ऑब्वियसली और हाई कोर्ट ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गई होगी बेल, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया. सुप्रीम कोर्ट में आके उसने बोला, फर्स्ट डेट पे बोला होगा पहले, कभी आज नहीं, उन्होंने बोला कि आप मुझे बेल दे दीजिए, मेरा ये जो 420 का माने चीटिंग का केस है उसमें 89 लाख का चीटिंग किया था, ऐसा बोल रहे हैं. आई एम रेडी टू गिव दैट 89 लाख टू दिस पर्सन. ठीक है जी, 89 लाख उनको चले गए. नाउ सुप्रीम कोर्ट बाय अगेन यूजिंग आर्टिकल 142 jurisdiction cost the FIR only that see आपको 89 लाख चाहिए थे,
89 lakhs उन्होंने दे दिए और एफआईआर खत्म करो अब। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर तो है, लेकिन आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ये। करेक्ट। दिस इज हाई कोर्ट्स वर्क और एनी लोअर कोर्ट्स वर्क। दैट इज हाउ सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ हीरो, एज यू से। राइट। आपने देखा होगा हाल फिलहाल के केसेस में दैट सिंस लाइक 3 years 4 years काफी ज्यादा फेक केसेस समझ में आ रहे हैं, दैट लड़कियां फेक केसेस फाइल कर रही, फेक रेप केसेस फाइल कर रही हैं, एंड कोर्ट की नज़र में आ भी जाता है कि फेक है, लेकिन कुछ प्रोसीडिंग्स हो नहीं पाती। देयर नॉट मच एक्शन दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट दीज पीपल। एंड आपको लगता है कि दैट women filing fake rape cases is acting against women who really have problems? यस इमेज वाली चीज आती है? नहीं, इमेज की बात नहीं है, एक प्री कंसीव्ड नोशन ना बन जाए हाँ। कि ये भी कहीं फेक केस तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितने भी केसेस चल रहे होंगे उसमें से 1% भी नहीं होंगे जो फेक केसेस होंगे। लेकिन क्या होता है कि वो जो 1% वाला जो आते हैं ना लोग, वो इतना ज्यादा हावी कर देते हैं which affects the other 99% of genuine cases, as you said. And as there is a apprehension of yours as well कि ऐसा हो सकता है, and बिल्कुल हो सकता है। और आप ये देखिए कि मैं आपको हमेशा मैं हर किसी को ये बताता हूं कि these women laws were there because women in our society, because it has been a patriarchal society, we have to change the society, right? As things are evolving, things are changing, तो इसके अंदर आपको उनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा भी आपका ही है। तो just because there are women laws, that doesn't mean that there will not be fake cases, or don't presume that there will not be any fake case. ऐसा फेक केस तो आप सिर्फ वुमेन के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे फेक केस तो किसी में भी हो सकता है ना? अगर आप 420 में ही देख लें कि अगर मैं आपसे किसी ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लूं और उसके बाद कुछ केस आप ही के ऊपर कर दूं, तो दैट इज ऑल्सो अ फेक केस। केसेस लाइक फाइलिंग केसेस अगेंस्ट एनीवन is immaterial. The main focus has to be the intention of a person to actually commit this kind of a crime. तो अब लड़कियां जो हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, these are very small in number, minuscule जो ऐसा कुछ करती हैं, ठीक है? लेकिन women are actually using these statutes as a shield, as a sword rather than a shield. ये एक शील्ड की तरह बनाए गए थे कि इनको प्रोटेक्ट होगा, और ये स्वॉर्ड की तरह यूज कर रही हैं कि भैया अगर तुमने मेरे साथ नहीं गए या इतना रुपया नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर 376 लगा दूंगी, 354 लगा दूंगी. There is also on-site blackmailing. Correct, absolutely. But I have seen people taking action against these women as well, and I've seen that in the courts, but that is not covered by the media, maybe because they also don't want to become little unpleasant. But the only concern here is, my concern, एक इंसान जिसके ऊपर 376 या 354 या any offense which is committed against the woman लगा हो, वो आदमी ये सोच रहा होता है कि हाथ जोड़ लो, पहले मैं इससे बच जाऊं, उसके बाद छोड़ो, कोई बात नहीं जी, इससे कांटेक्ट नहीं रखना है. Why? Because the society treats you like this. Absolutely. And as we had actually a discussion in the first half saying this is all perception and society comes to the conclusion like this. And वो आपको एक्यूज छोड़िए, आपको तो करार कर देते हैं फांसी होनी चाहिए जी इनको. Absolutely. That's how people do. And because of these reasons, women are actually doing it. But कोर्ट में इसका असर देखने को मिल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. जजेस पहले एक प्री कंसीव्ड नोशन के बताते हैं शायद फेक हो. नहीं ऐसा नहीं होता है. मेरे को ये असर देखने को मिल रहा है that judges nowadays are critically examining everything. Especially in cases में. Correct.
because they also have now realized which कि is good, possibility है. but which is good enough in a sense that आप अगर पहले एक समय था, मैं आपको बताता हूँ because I can share this, I think because this is my personal experience, that जब मैं पहले अपने younger days में वकालत करता था, तो हमें लगता था 376 का मुकदमा अगर किसी के ऊपर हो जाए या 354 का मुकदमा किसी के ऊपर हो जाए तो बेल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, because these are offenses against the women. But nowadays I am seeing कि ये बहुत इवॉल्व हो गया है और जजेस हैव बिकम मोर प्रो लिबर्टी एंड दे आर नॉट कंसिडरिंग वेदर इट्स अ रेप केस और एनी अदर केस. लाइक एक है अगेंस्ट वुमेन, एक है अगेंस्ट द सोसाइटी और मे बी अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, बट दे आर ट्रीटिंग इट एट पार. वो देख नहीं रहे कि ओहो आपके ऊपर तो भैया रेप केस लगा है तो मेरे को और अच्छे से आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. They only go by the law, and the law is defined under section 437 of CRPC with regard to bail. For example कि अगर facts हैं, there are certain facts that are stating कि ये chain of events था, but law कह रहा है कि उस fact से हमें कोई मतलब नहीं है, but लॉ कुछ और स्टेट कर रहा है. कभी कॉन्फ्लिक्ट देखा है आपने? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है. लॉ और फैक्ट्स में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता है बिकॉज ऑफ अ रीजन दैट फैक्ट्स जितने भी आते हैं उसी के हिसाब से हम उस पे लॉ अप्लाई करते हैं. अच्छा. तो फैक्ट्स ऑलवेज हैज टू बी कंसिस्टेंट और उसके अंदर जो अब फैक्ट्स है, मैं यहां आया, उसके बाद मेरे अगेंस्ट कोई और केस करेगा कहीं पे भी कि यार इसने मेरे को मर्डर कर दिया या इसने मेरे को मारा, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, डंडा मार दिया मेरे सर पर, I can at least show the CCTV footage of their office saying that I was not even there. Doctrine of alibi. Why I can show? This is as per the Indian Evidence Act. Correct. So the law is applied to the facts to save myself. So law and facts go hand in hand. Absolutely. अब फैक्ट्स तो पहले ही आए थे ना, मुर्गी आया था या अंडा, तो इसमें तो हमें पता है कि फैक्ट्स हमेशा आए थे, उसके हिसाब से तो लॉ बनाया गया है. इट्स फॉर द सोसाइटी. लॉ इज नॉट डेंजरस. कभी आपने देखा है कोर्ट केसेस में जैसे आप अपेयर होते हैं और आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, लेकिन सामने जो वकील साहब थे वो थोड़ा सा फिल्मी हो गए या फिर जज कोई फिल्मी हो गए या कोई क्लाइंट है जो फिल्मी हो गया अचानक से, कोई इंसिडेंट आपको लगता है? हाँ. मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर बहुत कुछ होता है ऐसा, because I think the advocates are also very well connected to the clients. Even I have actually raised my voice before many judges or before the other side's counsel, and judges humor रहता है अगर दोनों side heated arguments कर रही हैं. तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं ऐसा तो कोई केस मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा है. मैट्रिमोनियल केसेस हैं कुछ जिसके अंदर मैंने एक बार देखा कि दूसरी साइड के एक एडवोकेट है वो रोने लग गई. अच्छा. तो अब वो क्रोकोडाइल टीयर्स थे या रियल टीयर्स थे, आई डोंट नो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट बोलते हैं ना कि वकील और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए. तो इट्स द सेम थिंग दैट इन मैट्रिमोनियल केसेस और अदर केसेस एज वेल, लाइक बेल, लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी केसेस और अदर हेबियस कॉर्पस पिटिशंस, people do that. People actually pressurize you so much that you have to outperform before the judge. They don't consider, the clients don't consider that a judge has to be like, we have to convince him. We don't have to convince the client. We have to convince the judge to get a relief for the client. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे क्लाइंट बोलते हैं अरे आपने तो कुछ बोला नहीं ज्यादा, दूसरी साइड ज्यादा बोल गई, चलो वो तो हमारा केस अच्छा था इसलिए हम जीत गए. अच्छा. आपने थोड़ा कम बोला. लेकिन बट वो फिल्मी होने से फायदा होता है? फायदा कभी नहीं होता है फिल्मी होने से, लेकिन दीज आर इमोशंस. अच्छा. जो अगर फिल्मों में भी ये दिखाते हैं कि ये ऐसे फिल्मी हो गए और ये सब हो गया, आई थिंक दीज आर इमोशंस विच आर एक्चुअली वो अपने इमोशंस निकालते हैं जज के सामने फॉर द क्लाइंट्स ओनली. तो कभी आप कह रहे हैं कि कभी किसी कोर्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे हमने गोविंदा की एक फिल्म में देखा था, उसने हाथ कपड़ा बांध के आग लगा दिया. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इधर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो उस समय कंप्लीट कंटेम्प्ट. अगर असली में कोई अगर करे तो वकील के अगेंस्ट क्या केस खोल सकते हैं? एफआईआर हो जाएगी जी. एफआईआर हो जाएगी. और क्या उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट चला जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, एफआईआर हो सकती है, यू कैन बी इम्प्रिजन्ड. ठीक है.
you can be in the prisons because of this thing. जज में देखा कि इसने प्रूव करने के लिए ऐसा कुछ किया है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. और प्रूफ ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल से नहीं होता कि ऐसे सांप फेंक दिया बोले जज साहब का भी यही रिएक्शन होगा. तो can't happen like this. These are hypothetical examples which are based on presumptions. But have you seen the movie Pink? Yes. And Amitabh Bachchan acting again. Yes. But did you find that courtroom drama very close to reality? Very close to reality. Maybe that monologue and all. Monologue obviously is there because it happens in the final arguments. So final arguments में ऐसा ही होता है. And the other aspect here is that I think the law which is actually taught in Pink was that the consent is important. That is how, I mean, the courtroom works. Right. Yes. That's how it works. Yes. And any other films that have, that you've liked कि इसमें काफी अच्छा दिखाया? Jolly LLB. Jolly LLB is also good. This First is or that second? lower court one. First. Jolly LLB 1. But obviously that Dharna Pradarshan and all is not there. That I think it's in 2. It's in second. Yeah, but Jolly LLB 1 It's is very also good. good. And एक गलत चीज लिखा है वहाँ पे that Arshad Warsi has filed a petition which is public interest litigation to open a case, but public interest litigation can only be filed before the constitutional courts, which is High Court, Which is not a lower court. and Supreme Court. It cannot be lower court. Okay. But obviously you have to show some drama and Right. everything, so you have to take that creative liberty. But lower courts are like this. Sometimes infrastructure is not there. Right. Sometimes पंखा नहीं चल रहा है और ये सब चीजें नहीं हो रही हैं. All these things are always there. अगर आपने वो देखा हो Netflix पे मामला लीगल है. Right. Yeah, that is like a picture for. Obviously they have also taken many Yes. creative liberty because आप बोर हो जाएंगे, Right. है ना. तो लेकिन वो है कि एक reality of courts जो दिखाया गया है lower court. आपके एक्सपीरियंस में कभी, मुझे नहीं पता, because you have you from the background of a legal, you've been practicing your आप वकालत कर रहे थे सालों से, कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक जज साहब आए हैं और आपको उन्होंने बताया है दोस्ती में ही कि निपुण ये केस मेरे पास आया था, मुझे पता था एक्यूज्ड कौन है, लेकिन एविडेंस नहीं मिला, लैक ऑफ एविडेंस के तौर पे की वजह से मैं जजमेंट नहीं दे पाया, सही जजमेंट, कभी हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं हुआ. कभी भी नहीं हुआ. We meet judges and the only thing here is that in social gatherings and everywhere we meet the judges, but the only thing we have to maintain is don't discuss about the cases at all. So we discuss about anything and everything except the cases which are going on, or he's taking care of, or I am doing it before him or her, whatever. ब्रेक टाइम में क्या बातें होती हैं जब ब्रेक टाइम होता है, मतलब कोर्ट चल रहा है, ब्रेक टाइम जजेस अपने चेंबर में चले जाते हैं खाना खाने. कभी ऐसा नहीं कि आप बाहर मिले और आपने बात करी है? No, they don't come out. कभी किसी जज ने आपको लताड़ा है, डांटा है? हर जज ने. अच्छा. लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. मैं वही बोलता हूँ ना कि ये लताड़ना जो है वो क्लाइंट का होता है. आप देखिए वकील कभी नहीं हारता है ना. या तो ये देखिए, अगर आपका केस हारा तो क्लाइंट हारा. करेक्ट. क्योंकि उसमें लिखा होता है ना कि क्लाइंट का नाम, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो, लेकिन अगर आपका केस जीता तो आप जीते. तो why I'm saying this, because you have always stepped into the shoes of the client to represent the client. Right. तो अगर आपको डांट पड़ रही है वो क्लाइंट को पड़ रही है. एंड होते हैं कई केसेस जिसके अंदर आपको डांट पड़ती है, बहुत पड़ती है. अगले दिन मैं उन्हीं जज के पास जा रहा हूँ और फेवरेबल ऑर्डर लेके आ रहा हूँ. तो ऑल दीज थिंग्स हैपन. काफी सीरियस माहौल रहता है आई थिंक लीगल फील्ड में, और बिकॉज पीपल्स लाइव्स आर ऑन द लाइन. लेकिन जो सीरियस माहौल को थोड़ा सा मजाकिया बनाते हैं कॉमेडियंस इन आवर कंट्री स्पेशली, कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके भी आप जेल जा सकते हो, ये हमने रिसेंटली देखा है. कई सालों से हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं. आई एम श्योर पहले भी होते होंगे. लेकिन हाउ डू यू सी दिस, जब आप देखते हो कि अरे इस फलाना कॉमेडियन के अगेंस्ट एफआईआर हो गई है, डू यू सी दिस एज अ केस कमिंग टुवर्ड्स यू? डू यू सी इट एज कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी तो इसने कुछ नहीं बोला, या फिर डू यू आल्सो सी इट फ्रॉम अ सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा ही हुआ, ये ज्यादा तो बोलते हैं? वही आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. आपने आंसर ही दे दिया वैसे एक्चुअली, कि इसके भी दो ही पहलू हैं.
एक ये है कि आप एज एडवोकेट बात करते हैं तो आप अपने दिमाग में एज एन एडवोकेट सोचते हैं कि हाउ इफ आई वुड बी देयर टू सेव हिम व्हाट वुड बी माय स्ट्रैटेजी, right? Because I am more of a defense counsel. I don't appear much for complainants. I appear for the accused persons, right? But the other aspect is that अगर आप society point of view से देखें, because YouTube है, वो accessible है. Though the content which was actually posted by Samay Raina and team or other people who were guests, वो behind the paywall था. जो भी सब्जेक्ट कंटेंट है वो बिहाइंड द पेवॉल था. इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू एक्सेस दोज वीडियोस एंड यू हैव टू बी 18+ एंड एवरीथिंग जो भी लिखा होता है. अब अगर ये सब चीजें देखें तो बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज हैं वो जो 18+ ईयर्स का वो देते हैं, और इतनी सारी वेब सीरीज है. मिर्जापुर में भी गालियां हैं, नहीं है? मिर्जापुर में भी गालियां हैं, और आई थिंक फैमिली मैन में भी गालियां हैं, और इतनी सारी सीरीज आ रही हैं उसमें सब में गालियां हैं. कांट कर्ब इट, राइट? दिस इज हाउ आई थिंक सोसाइटी इज चेंजिंग. मे बी दे आर एक्सेप्टेबल टू ऑल दीज स्टफ व्हिच इज हैपनिंग. आई ऑल्सो थिंक दैट दीज पीपल हु आर कॉमेडियंस, आई थिंक stepped a little more, not considering the society at large. They considered maybe only the millennials or the Gen Zs. But there are other people as well whose opinions they actually don't care about. Maybe personally आपको लगता है कि ये सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं? फेमस होने के लिए नहीं, इनको जहां पे ताली मिलती है ना वो वही बोलते हैं. अगर आप ये देखिए कि ये अगर एक सत्संग में बैठ जाएंगे या कुछ भी बातें बोलेंगे और he becomes a motivational speaker, I don't think his tickets will be sold out like this. एंड अदर पीपल ऑल्सो वॉन्ट्स कि भैया पैसा आएगा कैसे भी, अगर और मेरे पास पैसा कैसे आ रहा है, मैं यही काम कर रहा हूं तभी आ रहा है. और यही कंट्रोवर्सी, एग्जैक्टली सेम कंट्रोवर्सी इन अ डिफरेंट सेंस हैपेंड विद आई थिंक दिलजीत दोसांझ एंड हनी सिंह. दे आर सेइंग कि मैं अपना दारू का नाम नहीं अपने गाने में रखूंगा अगर आप दारू बंद कर दें तो. या फिर हनी सिंह ने बोला कि अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो लोग देखेंगे कैसे. So people are watching it, enjoying it. So either you amend the laws or you regulate it in a sense that everyone's choice has to be considered. That is how we can do. तो मेरे हिसाब से ऐसी भी कोई चीज नहीं थी. Maybe I'm a Delhi boy. And I have seen people abusing like anything in the roads everywhere. कहीं पे भी आप चले जाएं तो, but the matter is sub judice before the Honorable Supreme Court, and they are not allowed to actually talk about the matter or the allegations, whatever they are, or they are not allowed to give their own explanation as well. So that's why maybe no one is saying anything about the said controversy. But my point here is, I have to say that as a Delhi person maybe, or a young millennial or whatever you can call me, but ऐसा मुझे बहुत बड़ा लगा नहीं था जब ये ऐसे FIR होने लगी और न्यूज एंकर्स बोलने लगे. रिपब्लिक टीवी पे भी कुछ आ रहा था, या टाइम्स नाउ, या इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं वो सब चीजें ये सब बोलने लगे. तो मुझे लगा कि अच्छा ये कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर लगता है. तो मैं जब ऑन किया तो ये तो कॉमेडी पे हो रहा है कि इसको ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए. एंड रणवीर अलाहाबादिया तो कॉपीड अ जोक फ्रॉम सम कॉमेडियन, दैट्स ऑल. मतलब जब आपने ये वाली बात बोली कि नेशनल इंपॉर्टेंस का कुछ लग रहा है, मतलब वो मुझे सेंस आ रहा है कि आपका स्टैंड इस पे कहाँ पे है, कि इट लुक्स लाइक इट इज अ नेशनल इशू बट देयर आर बिगर नेशनल इश्यूज पेंडिंग. आपने एक बहुत फेमस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट किया है जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में थे. केस था जहाँ पे उन लोगों ने वैंडलिज्म किया और ये सब किया. सिर्फ नॉट ओनली दैट पर्सन बल्कि शो देखने वालों को अगेंस्ट भी FIRs की गई. ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? See, the thing is that FIRs are made or filed after only seeing the allegations. कि ये allegation थी, इस वजह से ये cognizable offense बनता है. That's why you have to register an FIR. That's the only thing. After that, police may decide not to actually do it.
बट एफआईआर रजिस्टर हुआ है, करेक्ट, और हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, देखने पे भी। अनफॉर्चुनेटली तो यूट्यूब पे अगर 31 मिलियन की मेरी ऑडियंस है, वो अगर देख रही तो उन सबको नोटिस जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उनके शो पे थे ना। हाँ, ये फिजिकल प्रेजेंस। हाँ, फिजिकल प्रेजेंस एंड इन्वॉल्वमेंट में भी, बिकॉज अगेन वी आर अगेन जंपिंग ऑन द कंक्लूजन। आई डोंट नो ओनली व्हाट एफआईआर एंड व्हाट पीपल वर डूइंग एंड व्हाट वर एक्चुअली दे कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑफेंस। वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई इंसान, कैसे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे, वेदर देयर इज एनी इलीगैलिटी और लीगैलिटी इन द मैटर, वी डोंट नो दैट। बट माय ओनली कंसर्न हियर इज दैट एक पता नहीं, मैं बहुत डर के बोलता हूँ ये सब चीजें, लेकिन क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मेरे को भी डर लग रहा है कि आई डोंट नो कि हम किस एक्सटेंट तक बोल सकते हैं, किस एक्सटेंट तक नहीं। बट दीज आर नॉट द मैटर्स वेयर आई थिंक पीपल शुड इंटरफेयर। डोंट लाइक इट, स्क्रॉल इट अप एंड डोंट सी। You don't like it, if it's obscene, don't subscribe, say I'm not interested. That's all. But did you find it entertaining जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया केस? मतलब इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, मतलब वो उनको फोन करके बोल रहे हैं कि कहाँ पे है तू? उसने बोला मैं तमिलनाडु में हूँ। वो बोल रहा तमिलनाडु में आके कैसे मारूंगा तेरे को? अच्छा, मुझे पता नहीं, ये न्यूज़ रिपोर्ट्स में था। Okay, I am not aware. अच्छा, I am not aware. Sorry. आपके पास काफी इंपॉर्टेंट केसेस होंगे। Sorry. मेरे पास काफी टाइम रहता है नहीं। जिसमें से मैं निकाल के इस तरह के सवाल Sorry. पूछ लेता हूँ। ऐसा ही एक सवाल और है मेरे पास। आप एक काफी ऑनेस्ट वकील हैं, आपके एसोसिएट्स रहे होंगे, जैसे कि हमने बात की कि हर तरह यिंग यांग आपने बताया। यिंग यांग वैसे काफी अच्छा एग्जांपल है, मतलब वकीलों की यूनिफॉर्म थोड़ा यिंग यांग टाइप का ही होता है। वो इंटेंशनली है यिंग यांग टाइप का? मतलब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं, I don't know, but the only thing is that either you have to be black or a white. It's like that, okay, right? okay. No gray. They can't be gray. Yeah, they should not be gray area. बाल तो ग्रे हो जाता है क्योंकि व्हाइट हो नहीं पा रहे हैं। वंडरफुल। बट मेरा सवाल ये है, पता कैसे चलता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉयर हायर किया है, आप अवेलेबल नहीं हो, और हम लोग किसी और वकील के पास जाते हैं, पता कैसे चलेगा कि वो मेरे like he is not fooling me? How to know if your lawyer is fooling you? You have to take constant updates from your advocate. Every time you be there in your court cases, every time you have to attend. आप अपने कोर्ट का केस अगर किसी को सौंप रहे हैं, फॉलो अप करिए और आप उनके साथ कोर्ट में जाइए, कंट्रीब्यूट करिए। डोंट एक्चुअली, एक वकील और डॉक्टर में एक चीज हो जाती है बस, डॉक्टर में आप इतने ज्यादा नहीं है कि आप जाके ऑपरेशन अपने आप से करवा ले या हेल्प कर दे उनकी ऑपरेशन में, लेकिन एडवोकेट जब केस कर रहा है, बिकॉज एडवोकेट हैज रेड ओनली योर फाइल एंड यू हैव लिव्ड विद दैट केस, because you have experienced those facts, so you have to help him as a team member to get your case fixed. तो अगर एडवोकेट को कोई डाउट हो factually, then you have to always tell everything to the advocate and follow up. That's all. ठीक है। तो कोई रेड फ्लैग्स ऐसे नहीं है जैसे कोई वकील आपको बोल रहा है कि आपकी वाली हियरिंग अटेंड मत करो, मैं कर लूंगा? नहीं, तो आपको करना ही है? करना चाहिए। और आप ये समझ के चलिए, आप अपने दिमाग में पहले एक प्रिजम्पशन डाल लीजिए कि कोई भी वकील हो वो मेरा केस जितवाना ही चाहता है। सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। ये भी आपकी जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर के में भी तो आप एक दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं। करेक्ट। तो ये भी आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है। तो लेना चाहिए, थर्ड ओपिनियन लेना चाहिए, क्रक्स पे पहुंचिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, I don't think anyone can actually satisfy you. एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर मैं बोलूँगा, the wave of entrepreneurship is here. Everybody, हमारे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि इंडिया को जॉब क्रिएटर बनना है, इंडिया को has to produce more businesses. IP राइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगती है, क्योंकि वो मैंने वेबसाइट खुद खोल के देखी है, 4 बार में तो समझ में आती करना क्या है, फिर 4-5 आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो और आपको समझ में आता है कि अच्छा ये करना है। Is there any easy way that you think? Of course, engage an advocate. He'll do it for you. If you want to register your trademark, engage a firm, engage an advocate. He'll file your trademark before the trademark registry and will be requiring, he'll provide your requisition list. You have to give your requisition list, all the papers and requisite documents to the advocate. Sign a wakalatnama, sign a letter of authority. He'll help you out.
doing all the registrations, and then after that notifications which are issued after the registration of trademark, and all these things, it's advocates are doing it because of this लहर only कि इतना ज्यादा चल रहा है कि आपको अपना आईपी रजिस्टर करवाना है. बट मैं आपको बता दूं कि obviously trademark registration is very much necessary because of this reason, that no one should actually adopt your name, but it's not compulsory. It's advisable, but it's not compulsory कि बिना ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के आप अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते. आप बिल्कुल कर सकते हैं अपना बिजनेस विदाउट रजिस्टरिंग द ट्रेडमार्क. वरना हर कॉर्नर में अग्रवाल कॉर्नर नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कभी कभी कोर्ट का फैसला आता है, जल्दी भी आता है या कभी देर से भी आता है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कोर्ट का फैसला है लेकिन जस्टिस नहीं आया. डू यू एग्री? नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि जो भी कोर्ट का फैसला है वही जस्टिस है. जो हारा, अब वही है ना कि एक ने जीतना है और एक ने हारना है, तो जो जीता उसे तो लग रहा है कि जस्टिस मिल गया. इफ यू आर अग्रीव्ड एंड इफ यू थिंक that just because a judgment has come and is not in my favor, that's why there is no justice, you file an appeal. That's why there are three steps, three hierarchies of the courts. लोअर कोर्ट से हारे, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से भी हार गए, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए. अगर वहां से भी हारे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा that that's the only justice you have. I totally agree that if the last court orders or passes a judgment in someone's favor, obviously that is against the other side. So एक side तो हमेशा दुखी होगी. But I totally completely believe in the courts. Okay, and the justice system. Absolutely, absolutely, undoubtedly. Okay. Out of court settlements फिर क्यों लोग? Because of the time. टाइम कंज्यूमिंग मैटर्स आर देयर, और इतने सारे मैटर्स हैं. पॉपुलेशन की वजह से जजेस की वैकेंसीज नहीं है, इतनी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है जजेस की हमारे देश में, और फिर भी जजेस एक एक दिन में 70 मैटर डिसाइड कर रहे हैं और इतना समय लग जाता है. तो इंसान को लगता है हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लेते हैं, हमें 2 पैसे कम मिलेंगे, लेकिन 10 साल पहले तो मिल गए. 10 साल बाद मैटर डिसाइड हो रहा है और 100 रुपए मिल रहे हैं. मैं 80 में ही खुश हूं, लेकिन 10 साल पहले तो मिले 80 रुपए. इट्स लाइक दैट. तो टाइम बचाने के लिए. एब्सोल्युटली. टाइम की किल्लत हमारे पास भी है, लेकिन हम आपका टाइम थोड़ा सा और लेंगे. नेक्स्ट टाइम विल बी सिटिंग अगेन, एक बार आपसे दोबारा वार्तालाप करेंगे कुछ और. ये तो मतलब सिर्फ एक पन्ना था, हमारे पास ऐसे पूरी किताब है जो हम पूछने वाले हैं निपुण से. बिकॉज वेरी सून यू विल बी सीइंग निपुण कत्याल सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, आस्किंग क्वेश्चंस, interacting with people, because Nipun Katyal is going to host वकील हाजिरो सीजन 2 and very soon you will be in the same chair. मुझे लगता है आपके पास बहुत सवाल होने वाले हैं तब, और आपके रिस्पेक्टेबल कलीग्स आपके साथ बैठे होंगे. कैसा लग रहा है for the next time? I am just thankful because I think you have given me this opportunity to ask some questions to my senior colleagues in the bar about their own experiences. तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, हमारी जनता को मोटिवेशन मिलेगा. तो ठीक है, सब ठीक है, अच्छा है. लेट्स गो विद द फ्लो एंड हिट इट. वंडरफुल. निपुण कत्याल लीगल मास्टर क्लासेस स्टिल ऑन. आप अगले पार्ट में हमें कैच करेंगे. एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच निपुण. थैंक यू सो मच.